Good morning, friends. Today we'll start with the topic ER diagram to table. This is the topic that is used to convert ER diagram into table. In previous session, we have seen how to draw ER diagram and extended ER diagram. In this session, we will see how we can able to convert the ER diagram into what table. Now this table is ultimately database, and outcome of this entire drawing of ER diagram is what we have to convert this ER diagram into what table. And once it is converted into table, you all are well aware, you have already started in your practical MySQL, where you can able to give create table command, and that create table command can be given after converting this ER diagram into table. So myself, Mahesh Sangvi, working as professor and head Department of Computer Engineering, dealing with this database management system, and today we will see ER diagram to table. I welcome all the students and I hope you will enjoy the today's learning. Let's move towards the agenda where we have to what? Convert ER diagram into table. So for conversion of ER diagram to table, there are certain steps that we need to take. Each entity will be converted into table. Now you must remember that the symbol of entity is what? Here it is given. See, I'm moving my pointer, okay, on right top corner. You can understand that this rectangle is actually representing what? Entity. And our aim is what? We need to convert this ER diagram into table. It means that very first step will be each entity should be converted into what? Table. So this is what we need to think on. Each entity will be converted to table. Now the second rule, every many to many relationship or associative entity will be converted into, okay, it will also be converted into the table. So how we should deal with what? Many to many relationship as well as what? Associative entity, that also we will see, and it's our duty to convert that many to many relationship into table. We must know the importance of foreign key here. Certain rules must be applied for foreign key, and foreign key is playing vital role for conversion of your ER diagram into table. So we will see soon what these three statements are telling all about. I'm giving an example. By that example, you will understand all kinds of issues. Here, very first part is converting simple entity into table. Now, example is here. Suppose this is a simple entity, only single entity I have given, and in this entity there are different attributes like name, nation, position, and number of won. Suppose these are the entities. Okay, this is the entity having different attributes. How this can be converted into table? Process is very straightforward. Here, the name of player as an entity will be the name of table. Then the first entity will be that, the first attribute of this entity will be what? The first column name. Then the second one will be the second column name. Then the third one will be the third column name, and this number of one will, that is the last column, will be what? Last column name. It is very simple. So what we are doing, we are simply focusing on what? Player is ultimately entity name is equal to what? Table name. So what was the what is the name of entity? It is player, and that is the reason we have taken the name of table as a player. This is one first part. Second part that we have done, we have taken all attribute as a column name. So name is attribute for this entity. We made it as a column name as it is. Nation was an entity with player. We have taken it as an name of what? Column. So you will understand that, and this is the only reason at very first session of relational data model I have cleared you name, attribute, column name, field name is same terminology. So all the attributes which is listed using what? Which is represented using your ellipse is normally known as what? Attributes. So these are all name, nation, position. These are all what? Attribute. And player, which is represented using rectangle, is what? Entity.
So you can able to convert this into table ER diagram into what table? Very simple, I guess. You will understand that what we did, only name of entity is as it is name of table, and all the attributes becomes what? The name of column. So this way we have created the structure of database or the structure of table, and this is ready. Now we need to simply enter the data. Means what? Under name column we can able to enter the names. Under nation we can enter the nation. Position, likewise we can able to enter the data. So this is the conversion of simple entity into table. Now the next part, somewhat complexity we will add. Suppose we have a simple example, that is example 2, where we have salesperson having sales number, salesperson number, salesperson name, commission, percentage, and year of hire. Suppose we have this particular attributes. So same thing will be represented either by this way or table. One and the same thing for us, and we all should understand the meaning of it. I'm using this particular symbol henceforth, and that is the reason I'm showing you that here it will be the name of entity, and these are what? This is ER diagrams table. That is what I wanted to show you, where salesperson will be the name of entity, and all others are what? All others are attribute. Here star indicates it is a primary key of that table. Okay, so you need to understand salesperson is entity name that I have taken as it is, and all these are what? Column name that we have taken as it is. Okay, but only one thing that you need to understand here in this example, here it should be underlined. Okay, underline is missing. Why it should be underlined? Because the star should be marked as underline, and that indicates this is the primary key of salesperson table. Okay, so first example and second example is same, only representation earlier was in diagram, and here it is in the form of what? This particular form. So only change in form, and that is the reason I have cleared this particular point to you. Now we'll move towards the next example, and you will understand that how we can able to convert entities in binary relationship and whose cardinality will be 1 to 1. So how to convert binary relationship having cardinality 1 to 1 into table, so that you will understand. First of all, let's understand what is 1 to 1 relationship. So here salesperson is one of the entity, office is another entity. Salesperson has these many attributes, and office has these many attributes like office number, telephone, and then size. Okay, these many attributes are there for office. So these two tables are there, and there is 1 to 1 relationship between these two tables. It means that for one salesperson there will be one office, one telephone number, and one site. That this is what an idea that is given. That is known as 1 to 1 relationship, and here works in is acting as binary relationship because it is actually connecting salesperson as well as what? Office. That is, it is connecting to two entities. Okay, now concern is that how to convert this into what? Your table. So there are basically three ways of what? Three options of converting this into table. So let's look at one by one. We will understand here that when we have to convert binary relationship 1 to 1, let's look at the option 1. Option 1 is saying that the entities are combined into one relational table. So एक बड़ा relation table हम लोगों को बनाना पड़ेगा, and we will combine all the attributes into one table. Let's look at this example. This is what in previous slide I have shown, that salesperson and office. This is what an ER diagram that we have, and for this ER diagram, this is the table which is converted. Now this table will tell you salesperson and office. This is what the combined name that we have given. Instead of forward slash, you can use what? Hyphen or underscore. Underscore is better way. So salesperson underscore office will be the name of table, and all the attributes of salespersons are listed here. That is salesperson. We have taken underline because it is marked as star. So we have taken that. Then salesperson name. Then commission. Percentage, year of hire. So all these attributes are here. That is salesperson's four attribute and 3 attributes of what? Office. So we have taken all. Okay, so here you need to understand that this is one way of what? Converting this kind of ER diagram into table. So what we did here, nothing major here. You can understand that with this, all the attributes are combined into a big table, and the name of table will be given like that: salespersons underscore office. That's it.
nothing big deal here. Okay, but this way of this option 1 is not recommended. Okay, which options are recommended? So option number 2 is actually recommended, but those who are unable to do that, एटलीस्ट आप इतना भी करोगे तो कुछ ना कुछ मार्क्स आप लोगों को मिल जाएंगे। तो ऑप्शन 2 आपका क्या है वो आप फोकस कीजिए। फिर से एग्जांपल वही है, लेकिन ऑप्शन 2 आपको क्या बोलता है, ये लाइन के ऊपर आप लोग फोकस कीजिए। सेपरेट टेबल्स फॉर द सेल्स पर्सन एंड ऑफिस, वी नीड टू क्रिएट टू टेबल। One table will be of salesperson, another table will be of what, office. Two table will be created. Okay, and office number as a foreign key in the sales table. So ये जो office number primary key है office का, that will become one of the attribute of, one of the field name of, one of the column name of your salesperson, and in that salesperson it will act as a foreign key. And see an example, you will understand. By this example you will understand that office will be as it is, that is of two tables are created, salesperson and office. In office we have taken three attributes, 1 2 and 3. Even in salesperson we have taken four attributes, that is salesperson, salesperson name, its commission, then year of. These are all four attributes as it is here. Now one additional attribute that we have taken, that is acting as foreign key, because it is a primary key of this office. This shows we are actually what, we are actually establishing the relationship between two table. दो टेबल के बीच में हम लोग रिलेशनशिप जो भी है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एस्टेब्लिश कर रहे हैं बाय यूजिंग व्हाट, एडिंग ऑफिस नंबर, दैट इज वन ऑफ द फॉरेन की, ओके, व्हिच इज primary key of what, office. This way you can able to do. This is recommended way. Option 2 is what, recommended way. This way we can able to create two table. I'm repeating, it is very simple. What we did, we have taken office table as it is, all three fields, no problem. Then we have taken salesperson, all four fields, but we have added the primary key of office here that shows the relationship between these two. And that is the reason foreign key is playing vital role in what, conversion of your ER diagram to table. Now the third option is again very simple. What we did here, option 3 is telling you that salesperson, okay, separate tables for the salesperson and office. First line is as it is, separate table आपको salesperson के लिए भी लेना है, office के लिए भी लेना है। लेकिन यहाँ पर अब foreign की क्या होगा, salesperson number will become foreign key of office table। यानी हम लोगों ने पहले क्या किया हुआ था, अब देखिए salesperson के चार फील्ड, salesperson as it is हम लोगों ने यहाँ पर लिया, यानी ये वाला जो भी एंटिटी है उसका ये नाम और उसके सारे फील्ड्स यहाँ पर लिए। सेकेंड एंटिटी हम लोगों ने ऑफिस का बनाया और ऑफिस में हम लोगों ने एक तीनों के तीनों फील्ड दिए, ऑफिस नंबर, टेलीफोन नंबर एंड व्हाट, सेल्स पर्सन एंड साइज, ये हम लोगों ने लिया। और एक फील्ड उसमें हम लोगों ने ऐड किया, दैट इज सेल्स पर्सन, व्हिच बिकम्स नाउ द फॉरेन की ऑफ दिस प्राइमरी की। यानी ये फॉरेन की है जो कि सेल्स पर्सन का क्या बन गया, प्राइमरी की। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि फर्स्ट टेबल में आप लोगों को दूसरे का प्राइमरी की कंसीडर करना है कि एज अ फॉरेन की, या सेकंड टेबल में फर्स्ट टेबल का प्राइमरी की एज अ फॉरेन की ऐड करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। दोनों भी ऑप्शन जो भी है वो रिकमेंडेड है। ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 इज व्हाट रिकमेंडेड। दोस्तों बहुत सिंपल है, आपको समझना जरूरी है। एक एंटिटी जो रहेगी उसको एज इट इज टेबल में कन्वर्ट किया, दूसरा एंटिटी भी टेबल में कन्वर्ट किया, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी कुछ उन दोनों के बीच में जो भी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी है उसमें आपको करना क्या रहेगा, आइदर सेकंड टेबल का प्राइमरी की फर्स्ट टेबल में एज अ फॉरेन की ऐड करो, या फिर फर्स्ट टेबल की प्राइमरी की सेकंड टेबल के फॉरेन की में ऐड करो। तो दोनों में से कुछ भी एक ऑप्शन जो भी है वो चलेगा। तो दोनों ऑप्शंस मैंने आप लोगों को बताए हैं। दिस इज आई गेस दिस इज वेरी सिंपल। दिस ऑल आई वाज टॉकिंग अबाउट 1 to 1। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज लुक टुवर्ड्स व्हाट, 1 to many। बाइनरी रिलेशनशिप ही हम लोगों को देखना है, लेकिन अभी 1 to many के लिए देखते हैं। जब भी 1 to many की बात आती है तो आपको समझ में आना चाहिए कि एक सेल्स पर्सन जो भी रहेगा मल्टीपल कस्टमर्स के साथ में क्या करेगा, डील करेगा। तो एक सेल्स पर्सन और मल्टीपल यहाँ पर क्या आएंगे, कस्टमर्स आएंगे। ओके, वन सेल्स पर्सन एंड मल्टीपल कस्टमर्स, ये आप लोगों को समझना है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होगा, तो ये आपको जो भी है एक यूनिक आइडेंटिफायर आप लोगों को लगेगा। यूनिक आइडेंटिफायर या नहीं, हम लोग उसको की बोलते हैं या प्राइमरी की बोलते हैं। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। हियर you can understand this particular part, that the one side of 1 to many relationship, 1 to many relationship में one side कौन सा है, सेल्स पर्सन का क्या है, one side है। okay, the one side of 1 to many relationship is placed as a foreign key
इन द टेबल रिप्रेजेंटिंग द एंटिटी एट मेनी साइड। यानी क्या, इसका एक टेबल आपको बनाना है सेल्स पर्सन का, कस्टमर का आपको एक टेबल बनाना है, लेकिन जब वन टू मेनी रहेगा तो आपको क्या करना रहेगा, इसका जो भी प्राइमरी की है वो कस्टमर के टेबल में एज अ फॉरेन की ऐड करना होगा। ओके, लेट्स लुक एट द एग्जांपल सो दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट वी डिड विद दिस use of sales number. See that the sales number attribute is placed in the customer table as a foreign key. Means what, इसका एक टेबल बन जाएगा सेल्स पर्सन का, जो हम लोगों ने एज इट इज बनाया, जितने उसमें 4 फील्ड्स थे वो हम लोगों ने लिए। नाउ कस्टमर का जब भी हम लोग टेबल बनाएंगे तो कस्टमर के जो 3 एट्रीब्यूट्स है, कस्टमर नंबर, कस्टमर नेम और एचक्यू क्वांटिटी, एज इट इज लिया, लेकिन एक एडिशनल फील्ड इसमें हम लोगों ने ऐड किया, एंड दैट एडिशनल फील्ड इज अल्टीमेटली foreign key of customer table but which is primary key of sales person। तो दोनों में फिर से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की। तो 1 to 1 में क्या है, आपके ऊपर चॉइस था यहां लेना है या वहां लेना है, लेकिन 1 to many में चॉइस नहीं है। मेनी का जहां पर मेनी वाला पार्ट जो आएगा, जहां पे मेनी वाला साइड है, वहां पर कंपलसरीली आपको 1 का प्राइमरी की एज अ फॉरेन की करके क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। एंड दिस विल क्लियर यू एन आइडिया हाउ वी कैन एबल टू कन्वर्ट 1 to many। जैसे 1 to many का है वैसे ही many to क्या रहेगा, 1 का रहेगा। तो दोनों सेम ही है, इसलिए उसकी केस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोग फोकस करने जा रहे हैं मेनी टू मेनी रिलेशनशिप के ऊपर। ओके, हम लोगों ने क्या क्या देखा, 1 to 1 देखा, उसके बाद हम लोगों ने 1 to many देखा, मेनी टू 1 एक जैसे ही होता है। अब हम लोग फोकस कर रहे हैं मेनी टू मेनी। Now when in case of many to many, you need to focus on what, when there will be a case where many to many relationship will be there, what we need to do, see that यहाँ पर आपको समझ में आएगा सेल्स पर्सन है, प्रोडक्ट है, और इनमें रिलेशनशिप क्या है, सेल्स का, और उसको सेल का जो भी रिलेशनशिप है उसमें एक एट्रीब्यूट लगा हुआ है क्वांटिटी। यानी आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने क्या किया था, रिलेशनशिप को एट्रीब्यूट लगाया हुआ है। तो ये उसका मीनिंग ये है, यानी क्या, सेल्स पर्सन इज एंटिटी, प्रोडक्ट इज एंटिटी। ओके, क्योंकि ये दोनों रेक्टेंगल के फॉर्म में यहाँ पर दिखा है, लेकिन ये यहाँ पे कौन से फॉर्म में दिखा है, डायमंड के फॉर्म में। सेल इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग व्हाट, डायमंड फॉर्म। This means that sale here is act as relationship. So two entities are there and relationship is like many to many. Means what? Multiple salesperson are taking care of what? Multiple product. So this kind of relationship is known as many to many. Now question is that how to convert such many to many relationship into what? Table. So I have given convert to 3 relational tables. You need to create 3 tables. One will be for salesperson, another one will be for product. Okay, and third one will be for what? Sale. Now how we have done, the 2 entities converts to table with own attributes but with no foreign keys। यानी क्या, सेल्स पर्सन एक बन जाएगा, प्रोडक्ट एक बन जाएगा, दोनों में फॉरेन की नहीं आएगा, वो सेपरेट इंडिपेंडेंट टेबल बनेंगे। और देयर मस्ट बी अ थर्ड मेनी टू मेनी टेबल, एक थर्ड टेबल आपको बनाना पड़ेगा, और वो टेबल कौन सा बनेगा, आपका सेल्स वाला, जहां पे आप लोग क्या करोगे, सेल्स पर्सन का और प्रोडक्ट का दोनों का प्राइमरी की एज अ फॉरेन की उसमें ऐड करोगे। ओके, ये आपको आगे के रिप्रेजेंटेशन से काफी क्लियर हो जाएगा। ओके, दिस डायग्राम विल टेल यू द प्राइमरी की। ओके, हियर यू विल अंडरस्टैंड दैट दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज प्रोडक्ट एज इट इज आया। देखिए प्रोडक्ट का जो भी है, इसमें 3 फील्ड है हम लोगों ने लिए, और प्रोडक्ट नंबर उसका प्राइमरी की बन गया। उसके बाद सेल्स पर्सन के बारे में हम लोग देखेंगे। सेल्स पर्सन के भी एज इट इज जो चारों एट्रीब्यूट्स है वो यहाँ पर डाल दिए, और सेल्स पर्सन को हम लोगों ने क्या बना दिया, प्राइमरी की बना दिया। ओके, नाउ थर्ड टेबल जो भी है वो नई चीज है यहाँ पर, वो देखनी है। थर्ड टेबल क्या बनेगा, सेल नाम का एक थर्ड टेबल बनेगा, जो रिलेशनशिप का नाम था, जहां पर उसका क्वांटिटी जो भी एट्रीब्यूट था वो भी हम लोगों ने यहाँ पर लिया है, लेकिन प्रोडक्ट का प्राइमरी की और सेल्स पर्सन का प्राइमरी की एज अ फॉरेन की यहाँ पर ऐड किया, और दोनों मिलके, यानी क्या, सेल्स पर्सन नंबर एंड प्रोडक्ट नंबर, ये दोनों मिलके सेल टेबल का क्या बनेगा, प्राइमरी की बनेगा। तो बहुत सिंपल है दोस्तों। पहला जो भी था 1 to 1 में हम लोगों ने क्या किया, 2 टेबल बनाए और किसी एक का प्राइमरी की दूसरे में ऐड कर दिया एज अ फॉरेन की। ओके, चॉइस आपके पास है, लेफ्ट वाले में ऐड करना है या राइट वाले में ऐड करना है। ये 1 to 1 की केस में है। 1 to many की केस में क्या होता है, मैं फिर से बोल रहा हूं, 1 to many की केस में क्या होता है, जहां पर 1 है और यहाँ पे 1 है, और यहाँ पर यदि मेनी है, तो 1 का जो भी प्राइमरी की होगा वो मेनी के टेबल में आपको एज अ फॉरेन की करके क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ये हो गया 1 to many की केस में। अब मेनी टू मेनी की केस जब भी रहेगी, उसमें क्या है, लेफ्ट वाला टेबल एज इट इज, राइट वाला टेबल एज इट इज, रिलेशनशिप का थर्ड टेबल आप लोग बनाओगे, उसमें उसके जो भी एट्रीब्यूट्स है वो ऐड करोगे, लेकिन
जो लेफ्ट वाला टेबल और राइट वाला टेबल है उसका प्राइमरी की एज अ फॉरेन की वो थर्ड वाले टेबल में आपको ऐड करना है। इसीलिए यहां पर आप यदि गौर करोगे, प्रोडक्ट इज एज इट इज, सेल्स पर्सन इज एज इट इज, बट इन सेल व्हाट वी डिड, the primary key of salesperson is added here and the primary key of product is added here. This both becomes what, salesperson number is a foreign key, okay, of sale table which is pointing to what, this salesperson. Product number is foreign key for this sale table but it is primary key of this product table. और ये दोनों मिलके salesperson and product number, ये दोनों को मिलके, ये दोनों फील्ड को मिला के प्राइमरी की बनेगा सेल। इसलिए प्राइमरी की का डेफिनेशन आपको इस तरीके से दिया गया था, प्राइमरी की इज सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर एक एक ही एट्रीब्यूट है लेकिन यहाँ पे एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को मिला के प्राइमरी की आपका बन रहा है, एंड दैट इज द केस ऑफ व्हाट, द थर्ड टेबल। आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट। यहाँ पर आपको समझ में आएगा, ये वाला जो भी एरो गलत हो गया है, ये एरो कहाँ जाना चाहिए था, सेल्स पर्सन के पास, ये वाला एरो जो भी वो प्रोडक्ट के पास जाना चाहिए था, और इसका एरो जो भी है वो कहाँ पर आएगा आपके नेक्स्ट इसके लिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट, यहाँ तक हम लोगों ने क्या देखा, बाइनरी रिलेशनशिप के बारे में देखा। अब हम लोग यूनरी रिलेशनशिप के बारे में देखेंगे। यूनरी रिलेशनशिप यानी क्या, जहां पर एक ही एंटिटी और एक ही रिलेशनशिप होगा। रोल इंडिकेटर आप लोगों को याद आना चाहिए, यानी क्या, एक टीचर मल्टीपल स्टूडेंट्स, या फिर एक एचओडी मल्टीपल टीचर्स, एक प्रिंसिपल मल्टीपल एचओडीज, एक मैनेजर मल्टीपल वर्कर्स। यदि आप लोगों को ये रिलेशनशिप याद होगी तो आपको समझ में आएगा। ओके, द कन्वर्जन रिक्वायर्स ओनली वन टेबल। जब भी आप कन्वर्ट करोगे वन टू वन रिलेशनशिप जो यूनरी का है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही टेबल लगता है। आप समझ लीजिए वो क्या है। अब यहाँ पर आप देखिए, ये वन टू वन है, यानी क्या, सेल्स पर्सन जो भी है उसके लिए एक ही बैकअप आईडी रहेगा। जितने भी सेल्स पर्सन है उसके लिए एक ही बैकअप आईडी रहेगा, यानी क्या, वन एंटिटी वन रिलेशनशिप, दिस इज नोन एज व्हाट, यूनरी। वन टू वन क्या है इसमें, ये वन टू वन ही है, यानी इसमें एक इंसान के लिए एक ही बैकअप, एक सेल्स पर्सन के लिए एक ही बैकअप आईडी रहेगा। तो उसके लिए यहाँ पर टेबल किस तरीके से बन रहा है वो देखिए। हम लोगों ने सेल्स पर्सन का नाम इसको दिया, सेल्स पर्सन में हम लोगों ने उसके चारों एट्रीब्यूट्स ले लिया एज इट इज, लेकिन बैकअप को एज अ बैकअप नंबर हम लोगों ने दिया और ये फॉरेन की बनता है। ये बैकअप नंबर ही यानी क्या है, सेल्स पर्सन है। यानी क्या, इसका मीनिंग ये होता है कि किसकी रिप्लेसमेंट पर कौन होगा। बैकअप का मीनिंग क्या है, किसके रिप्लेसमेंट पे कौन होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर यदि मेरा नंबर आता है, सपोज आई एम नंबर वन फैकल्टी, ओके, नंबर वन फैकल्टी, आई मींस मेरा नंबर वहां पर वन है, ओके, मास्टर पे मेरा नंबर वन है। तो अब क्या होता है कि मुझे बैकअप कौन है, मास्टर पे जो दो नंबर का बंदा होगा, यानी यहाँ पर वन आएगा और यहाँ पर मैं क्या लेने जाऊंगा, टू। इसका मतलब क्या है, जिस दिन मैं नहीं आऊंगा तो मेरे जगह पे आपको किसका साइन लेना है, सेकंड नंबर पे जो बंदा होगा, दैट इज नोन एज व्हाट, बैकअप नंबर। लेकिन वो सेकंड नंबर का रिकॉर्ड यहाँ पर ही आपको अवेलेबल होगा। सेकंड नंबर पे कौन सा पर्सन है, उसका नाम, डिटेल सब आपको मिल जाएगा। दिस इज नोन एज यूनरी रिलेशनशिप ऑफ व्हाट, वन टू वन। वेरी सिंपल है, ये भी बहुत सिंपल है। ओके, याद रखना है आपको, वन टू वन है तो इस तरीके से आएगा, लेकिन जैसे ही चेंज होगा, एग्जाम्पल यहाँ पर, ओके, देखिए एग्जाम्पल आप लोगों को यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जैसे कि सेल्स पर्सन है और मैनेजर है। ओके, यहाँ पर एक्चुअली गलती से ये वाला पर्टिकुलर पार्ट जो भी वो भी आप देखिए, जहाँ पे एग्जाम्पल डिफरेंट दिया है कि मैनेजर यहाँ पर है। ओके, तो और मैनेजर क्या कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर्स के साथ में काम कर रहा है। मान लीजिए वन टू मेनी भी रहा और वन टू वन भी रहा, तो दोनों में डिफरेंसेस कुछ भी नहीं है, टेबल एक ही बनेगा। सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है, सेल्स पर्सन के चारों एट्रीब्यूट्स एज इट इज रहेंगे। मैनेजर का स्पेलिंग यहाँ पर गलत हुआ है, इट शुड बी AGER। तो ये मैनेजर जो भी है, ये मैनेजर जो भी मैनेज कर रहा है उसका आईडी यहाँ पर आएगा, और आईडी ये फॉरेन की किसको पॉइंट करेगा, ये फॉरेन की एक्चुअली पॉइंट करेगा सेल्स पर्सन को ही। तो इस तरीके से यूनरी, वन टू वन और वन टू मेनी हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, यूनरी रिलेशनशिप मेनी टू मेनी। हम लोगों ने वन टू वन देखा है, वन टू मेनी देखा है, हम लोग मेनी टू मेनी देख रहे हैं। वन टू वन और वन टू मेनी में कोई डिफरेंस नहीं है, अब मेनी टू मेनी के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं। अब मेनी टू मेनी के केस में भी इस पर्टिकुलर टेबल को आपको दो टेबल बनाने पड़ते हैं। यानी क्या, यहां पर आप समझिए कि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नंबर, प्रोडक्ट का नेम और यूनिटी। प्रोडक्ट नाम का क्या है, एक एंटिटी है। रिलेशनशिप क्या है, पार्ट, और उस रिलेशनशिप को हम लोगों ने क्या किया है, एक एट्रीब्यूट यहां पर क्या किया है, ज्वाइन किया है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसको किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दो टेबल बनाने पड़ते हैं। ओके, ये थ्योरेटिकल पार्ट में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इसके लिए आपको दो टेबल बनाने पड़ेंगे। एक प्रोडक्ट का एज इट इज, प्रोडक्ट एंड इट्स थ्री एट्रीब्यूट्स एज इट इज, एंड वन मोर टेबल जो कंपोनेंट बनेगा, जिसका काम क्या रहेगा, ये प्रोडक्ट नंबर एज अ फॉरेन की, ये असेंबली नंबर आप लोगों को इसका लगेगा, ये पार्ट का, और उसका क्वांटिटी। इस तरीके से आप बनाओगे। असेंबली नंबर नहीं भी दिया तो भी चलेगा, आप डायरेक्टली प्रोडक्ट नंबर के साथ में
क्वांटिटी भी ले सकते हैं, दैट इंडिकेट्स दिस वे वी कैन एबल टू क्रिएट मेनी टू मेनी रिलेशनशिप ऑफ यूनरी। ओके, यूनरी का मेनी टू मेनी में आपको सिर्फ 2 टेबल बनाने पड़ते हैं, 1 to 1 की केस में, 1 to मेनी की केस में एक और एक ही टेबल बनेगा। ओके, तो ये काफी सिंपल है आपको समझना। ओके, इन केस इफ यू आर फेसिंग एनी सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टी यू कैन एनी टाइम आस्क मी द क्वेश्चन। ओके, so this is what I wanted to represent today, and the last part is regarding ternary relationship। ternary relationship जो भी है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट की जाएगी। अभी तक हम लोगों ने यूनरी रिलेशनशिप देखा है, बाइनरी रिलेशनशिप देखा है, उसमें सारे टाइप के कार्डिनलिटी भी हम लोगों ने कवर किए, दैट इज 1 to 1 भी हम लोगों ने कवर किया, 1 to many भी कवर किया, many to many भी हम लोगों ने कवर किया। अब हम लोग फोकस कर रहे हैं ternary relationship, how to convert ternary relationship into table। So you can understand here sales is acting as ternary relationship. Why it is known as ternary relationship? Because it is connecting to 3 entities: salesperson, customer and product। Okay, it is connecting to 3 entities and that is the reason sale is known as ternary relationship। इसके साथ में और एक एट्रीब्यूट भी है, ये टर्नरी रिलेशनशिप के साथ में एक एट्रीब्यूट भी है। विद एट्रीब्यूट विदाउट एट्रीब्यूट आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं इसलिए विद एट्रीब्यूट ले रहा हूं, आपको क्लैरिटी आ जाएगा। नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन टर्नरी रिलेशनशिप विल बी देयर? वी हैव 2 ऑप्शन, either we need to convert ternary relationship into binary relationship। एक बार बाइनरी रिलेशनशिप में आ गया तो मैंने आपको कन्वर्जन बता ही दिया है, लेकिन डायरेक्ट टर्नरी रिलेशनशिप को यदि आपको कन्वर्ट करना है टेबल में तो उसका भी मैंने यहाँ पर एक तरीका आप लोगों को दिया हुआ है, और वो तरीका एग्जैक्टली क्या है, फोकस करें। सबसे पहले व्हाट वी नीड टू डू, एज इट इज सेल्स पर्सन का एक टेबल एज इट इज बनेगा। ओके, उसके बाद प्रोडक्ट का टेबल एज इट इज बनेगा, उसके बाद कस्टमर का टेबल एज इट इज बनेगा। अब देखिए सेल्स पर्सन का जो भी टेबल है एज इट इज, प्रोडक्ट का जो भी टेबल है एज इट इज, ओके, और जो कस्टमर है उसका टेबल भी एज इट इज। चेंज कहां पर है, जो रिलेशनशिप है उसका टेबल देखो किस तरीके से बना है, जो रेड कलर में मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो फोकस करना है, बाकी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। तो रेड कलर वाला जो भी है वो किस तरीके से बनाया गया है, तो रेड कलर में आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर 2 फील्ड दिए थे सेल के अंदर। सेल जो भी रिलेशनशिप है इसमें 2 फील्ड दिए थे, एक था डेट और दूसरा था क्वांटिटी। तो डेट और क्वांटिटी एज इट इज, लेकिन इस टेबल में हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को प्रोडक्ट नंबर, ये प्रोडक्ट का प्राइमरी की ऐड करना है, कस्टमर नंबर, ये कस्टमर का प्राइमरी की ऐड करना है, और सेल्स पर्सन नंबर, ये सेल्स पर्सन का प्राइमरी की ऐड करना है। तो यहाँ पर सेल्स पर्सन नंबर ये फॉरेन की बनेगा सेल के लिए, कस्टमर नंबर फॉरेन की बनेगा सेल के लिए, प्रोडक्ट नंबर फॉरेन की बनेगा सेल के लिए। एक से ज्यादा फॉरेन की अलाउड है, लेकिन एक से ज्यादा प्राइमरी की अलाउड नहीं है। मेरी बात गौर से सुनिए। In one table, okay, in one table there will be one and only one primary key, but foreign key can be more than one। ओके, तो यहां पर आपको समझना है कि मल्टीपल फॉरेन की है, लेकिन इन तीनों को मिला के, इन तीनों को कंबाइन करके एक प्राइमरी की बनेगा सेल टेबल का। सो फ्रेंड्स, आई हैव ऑलरेडी क्लियर दिस पर्टिकुलर पार्ट। बहुत सिंपल है ये वाला भी। सेल्स पर्सन का एज इट इज बनेगा, प्रोडक्ट का एज इट इज बनेगा, कस्टमर का एज इट इज बनेगा, लेकिन ये सेल वाला जो रिलेशनशिप है जिसके 2 क्वांटिटी, जिसके 2 जो भी फील्ड्स है वो एज इट इज आए, और इस सेल में जो कि ये कस्टमर को भी कनेक्टेड है, प्रोडक्ट को भी कनेक्टेड है, सेल्स पर्सन को भी कनेक्टेड है, इसलिए इसका प्राइमरी की यहां पर आएगा, इसका प्राइमरी की यहां पर आएगा, और कस्टमर का भी प्राइमरी की यहां पर आएगा। इस तरीके से सभी के प्राइमरी की हम लोगों को क्या करने हैं, वो रिलेशनशिप के साथ में जोड़ देने हैं, एंड दिस वे वी कैन एबल टू कन्वर्ट दिस टर्नरी रिलेशनशिप इनटू व्हाट, दी टेबल। ओके, नाउ इट इज टाइम फॉर व्हाट, असाइनमेंट। मैं पोलिंग भी अभी लेने जा रहा हूं, लेकिन आपको सभी लोगों को एक असाइनमेंट में दे रहा हूं। ओके दोस्तों, आप यहाँ पर हो, आपको एक असाइनमेंट करना है। आप लोगों को ये जो भी है इसका आप स्नैपशॉट ले सकते हैं, आप लोग इसका फोटोग्राफ ले लीजिए, स्नैपशॉट लीजिए। आपका काम क्या रहेगा, आपको ये वाला जो भी ईआर डायग्राम दिया है इसको आपको कन्वर्ट करना रहेगा टेबल में। ओके, और वो टेबल जो भी है वर्ड के फाइल में आप लोग को जो भी है उसको स्नैपशॉट जो भी उसके लेने हैं, और पीडीएफ आपको गूगल क्लासरूम के ऊपर क्या करना है, अपलोड करना है। So दोस्तों, wish you all the best. I hope you all will enjoy this particular way of what teaching learning, जहां पर आप लोगों को ये पूरा डायग्राम दिया गया है, और ये पूरे डायग्राम को आप लोगों को क्या करना है, टेबल में कन्वर्ट करना है। कितने टेबल्स बनेंगे ये तो फिक्स हो गया कि पब्लिशर का एक टेबल बनेगा, बुक का एक टेबल बनेगा, ऑथर का एक टेबल बनेगा, कस्टमर का एक टेबल बनेगा। ओके, ये 4 टेबल तो फिक्स है। इसके अलावा आज का सेशन जिसको समझा होगा उसको समझ में आएगा कि पब्लिश्ड के साथ में टेबल बनेगा या नहीं, बॉट के साथ में टेबल बनेगा या नहीं, रोड के साथ में टेबल बनेगा नहीं
बनेगा या नहीं। ये असाइनमेंट जो भी है ये आप सभी लोगों को मैंडेटरी है, ये कंपलसरी असाइनमेंट है, आप सभी लोगों को सॉल्व करना है। जैसे ही आप लोग ये सॉल्व करोगे आपको गूगल क्लासरूम में क्या करना रहेगा, इसको अपलोड करना रहेगा। सो दोस्तों फ्रॉम माय एंड आप यदि देखोगे तो आपका यूनिट नंबर 1 आज मैं कंप्लीट कर रहा हूं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर यूनिट नंबर 1 इज कंप्लीटेड। जो एम था यूनिट नंबर 1 का, आपको डेटाबेस का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए था और आपको ईआर डायग्राम बनाते आना चाहिए था। ईआर डायग्राम को आपको रिलेशनल मॉडल में यानी टेबल में क्या करते आना चाहिए था, कन्वर्ट करते आना चाहिए था। ओके, तो मैं सभी लोगों को ये असाइनमेंट जो भी वो दिया हूं, आप सभी लोग इस असाइनमेंट का क्या कीजिए, स्नैपशॉट लीजिए और गूगल क्लासरूम में आपको इसको अपलोड करना होगा। चाहे कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हो या आईटी के स्टूडेंट्स हो, आपको दोनों को अलग अलग आपके गूगल क्लासरूम में वहां पे आपको इसको क्या करना रहेगा, अपलोड करना रहेगा। ओके, सो थैंक यू। आपको यदि कुछ डिफिकल्टीज है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों का अटेंडेंस ऑलरेडी मार्क कर चुका था। मैं अभी आप लोगों को क्या दे रहा हूं, आप लोगों को पोल जो भी है वो दे रहा हूं। ओके, और आपको आंसर करना रहेगा आज का पोल जो भी है। दोस्तों पोल के लिए रेडी रहिए आप लोग। मैं आप लोगों को पोल जो भी है सबसे पहले मैं यूट्यूब पर जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पर दे रहा हूं। ओके, यूट्यूब के ऊपर मैंने पोल जो भी है वो डाल दिया है और अब मैं पोल चार्ट विंडो के ऊपर डाल रहा हूं जूम के स्टूडेंट्स के लिए। आई होप यू ऑल विल एंजॉय दिस पोल। ओके, आई एम गिविंग यू 1 minute। ओके, एंड विद इन 1 minute यू कैन एंटर, यू कैन सॉल्व दिस पोल। ये असाइनमेंट जैसे ही आप सॉल्व करोगे आपको अच्छा खासा इसका जानकारी जो भी है वो आएगा। ओके, मैं पोल यहाँ पर ऑनलाइन पे भी एक पोल ले रहा हूं। जो लोग जूम के ऊपर है उनको भी ये पोल दिखाई देगा। आप ये वाला पोल जो भी मैं लॉन्च कर चुका हूं, ये वाला पोल भी आप लोग दे सकते हैं। सेम क्वेश्चंस थे वहां पर और यहाँ पर सेम क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाई देंगे। मुझे सिंपली ये चेक करना रहता है कि कितने स्टूडेंट्स को सही जवाब आ रहा है या नहीं, मुझे इसको रिपीट करना है या नहीं करना है, मुझे समझ में आएगा। आउट ऑफ 94 स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट 2 स्टूडेंट्स हैव येट गिवन। ओके, 3 and the number is now increasing. I'm giving you only 1 minute and then I'll be open for question answer session. Last 15 seconds and then I'll end this poll. Okay, your poll is now ending. So I'm ending the poll and I hope the results will be in front of you. Okay, I'm sharing the result. I've shared the result and you will understand from this result that the first question regarding ER diagram contents with simple entity is converted into ER diagram just by entity name as table name and its attribute as a column name. And the right answer is what? True. I'm happy that 93% students have given right answer. Dear students, this I have already covered. Now the next question is question number 2. Foreign key plays vital role in ER diagram to table conversion? And the answer is true. I have already told you everything we have seen in the form of what? Foreign key, वो one to many relationship रहे, one to one relationship रहे, many to many relationship रहे, unary रहे, binary रहे या ternary रहे, we need what? Foreign key. So foreign key is playing vital role and that is the reason answer is what? True. 83% students have given true answer, but dear students, everyone should understand that it is what? It is true. So I hope you enjoyed this particular poll. Okay, and you will gain some knowledge out of it. So be ready with what? Be ready with such type of assignment. ये assignment आप सभी लोगों को क्या करना है? Ready करना है. If you have any question, you can please ask. आपके questions है तो आप लोग पूछ सकते हैं. Dear friends, you can ask the questions. You
You can ask in chat window or you can unmute yourself and you can ask. Dear friends, if you have query, please ask on chat window. I'll be happy to see your doubts and ready to solve your doubts. Okay, so sir, please repeat the assignment question again. Okay, just a minute, I'm repeating it. This is what your assignment question. Assignment question में आप लोगों को ये पूरा ER diagram दिया हुआ है and your duty is to convert this ER diagram into table. ओके ये पूरा ईआर डायग्राम आपको टेबल में क्या करना रहेगा, कन्वर्ट करना रहेगा. वन बाय वन आप सॉल्व करते जाइए. पब्लिशर का एक टेबल बनेगा, बुक का टेबल बनेगा, ऑथर का बनेगा, कस्टमर का बनेगा. ये तो बहुत सिंपल है. कोई भी ईआर डायग्राम में जो एंटिटी होती है उसका टेबल बना देना है. लेकिन आपको जब रिलेशनशिप आएगी तो आपको समझना जरूरी है कौन सा रिलेशनशिप वन टू मेनी है, कौन सा रिलेशनशिप मेनी टू मेनी है. उससे आपको बहुत सारी चीजें जो भी वो समझ में आएगी. ओके यहाँ पर ये जो भी लाइंस इंडिकेट करती है इट इज व्हाट वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू मेनी रिलेशनशिप. ये सर्कल जो भी है ये आपको मेनी बता रहा है. सिंगल लाइन इंडिकेट्स वन टू वन. दिस इज वन टू मेनी. ये वन टू वन, ये वन टू मेनी, यानी पब्लिशर से बुक पर मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है. ये देखिए ये मेनी है, ये भी मेनी है. पब्लिशर से लेके बुक को मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है. बुक और ऑथर के बीच में वन टू वन रिलेशनशिप है. कस्टमर और बुक के बीच में, बुक से लेके कस्टमर के पास, यानी एक बुक मल्टीपल कस्टमर्स लेते हैं. सो वन टू मेनी रिलेशनशिप इस तरीके से है. तो यहाँ पर सिर्फ बाइनरी रिलेशनशिप का ही दिया है. आप यदि फोकस करते हैं बाइनरी रिलेशन वन टू वन आपको आंसर मिलेगा, वन टू मेनी आपको आंसर मिलेगा, मेनी टू मेनी आपको आंसर मिलेगा. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पब्लिशर और बुक के बीच में मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है. बुक और ऑथर के बीच में वन टू वन रिलेशनशिप है. बुक और कस्टमर के बीच में वन से लेके मेनी ये रिलेशनशिप है. I hope you will enjoy this assignment and try to solve this assignment. आपको यदि नहीं समझ में आ रहा है आप फिर से मेरा वीडियो आज का देखना, आपको समझ में आएगा. This assignment will be 5 days. 5 दिन तक आप लोगों को समय दे रहा हूँ. किसी का कॉपी ना करें, खुद से करने की कोशिश कीजिए. आपको डाउट होंगे तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के डाउट जो भी हो क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा. ओके सर, व्हाट इज द पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट एंड फॉरेन की? पार्टिसिपेंट कंस्ट्रेंट्स का मीनिंग ये होगा कि जब एक यूनरी रिलेशनशिप जब होगी तो वो पार्टिसिपेशन की जो की होती है वही फॉरेन की बन जाती है. मैं रिपीट कर रहा हूं, जो क्वेश्चन किया गया है जहां पर यूनरी रिलेशनशिप होती है वहां पर जो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट जिसके बारे में मैं बता रहा हूं, जो एट्रीब्यूट हम लोग ऐड करते हैं, एडिशनल एट्रीब्यूट, वो पार्टिसिपेशन का एट्रीब्यूट होता है और उसको हम लोग क्या बना देते हैं, फॉरेन की बना देते हैं. वीक एंटिटी के केस में भी क्या होता है, यदि आपका बाइनरी रिलेशनशिप है और आपके राइट हैंड साइड में यदि वीक एंटिटी होगी तो वीक एंटिटी की जो भी की होती है दैट इज नोन एज पार्टिसिपेशन की. वो भी फॉरेन की बन जाती है. किसमें? जहां पर स्ट्रॉन्ग एंटिटी है उसमें हम लोग उसको ऐड करके उसको क्या बनाते हैं, उसका फॉरेन की. या फिर इसका प्राइमरी की जो भी है वो आप वीक एंटिटी के सेट के साथ में क्या करोगे, ऐड करोगे, जहां पे वो क्या बन जाएगी, फॉरेन की बनेगी. ओके YouTube अवेलेबल नहीं है. मैं YouTube का आपको लिंक जो भी है वो प्रोवाइड करता हूं, डोंट वरी. I'll provide the link of YouTube in the Google Classroom as well as WhatsApp group also. Okay, so can you please tell the mainly difference between primary key and foreign key? प्राइमरी की का मीनिंग ये होता है उस टेबल का प्राइमरी की, यानी वो सबसे इंपॉर्टेंट की होता है. फॉरेन की यानी क्या, किसी और के टेबल का प्राइमरी की दूसरे एक टेबल में एज अ फॉरेन की करके बनेगा. मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी और टेबल का प्राइमरी की यदि आप दूसरे टेबल में डालते हो तो उसको फॉरेन की बोला जाता है. फॉरेन की इसीलिए नाम है क्योंकि वो फॉरेनर है उस टेबल के लिए, यानी क्या, वो किसी दूसरे देश का क्या है, बंदा है. ओके यस वरुण शाह, डू यू हैव एनी डाउट? ओके सॉरी सर, नो प्रॉब्लम. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. अब फिर से एक बार वीडियो देख लेना यदि आप लोगों को समझा नहीं होगा तो. ओके सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग यूनिट नंबर 1 खत्म कर रहे हैं और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग यूनिट नंबर 2 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एसक्यूएल क्वेरीज, जो आपको प्रैक्टिकल में लगेगा, एग्जामिनेशन में लगेगा. आप लोगों को कोई भी
एमएनसी जो भी है, मल्टीनेशनल कंपनी, उसका इंटरव्यू क्रैक करने के लिए लगेगा। आपके नेक्स्ट लेक्चर का जो भी आप लोगों का जो भी अभी 11:30 ये मेरा टाइम जो भी स्टिपुलेटेड टाइम ये हो रहा है, 2 मिनट मेरे पास है। यदि आप मुझे 2 मिनट देते हैं तो मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं किस तरीके से हम लोग इसको यूज करेंगे। ओके, सो दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, एक सिंपल आज का और आपका और मेरा जो भी रिलेशनशिप है वो क्या है, मैं टीचर हूं और आप क्या है, स्टूडेंट है। यानी क्या, यदि यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको बोल देता हूं कि मैं एज अ टीचर करके काम कर रहा हूं और आप क्या कर रहे हैं, एज अ स्टूडेंट करके यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो मान लीजिए मेरे और आपके बीच में क्या है, 1 to many रिलेशनशिप, क्योंकि टीचर एक और स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, मल्टीपल है। तो मैंने इसको क्या कर दिया यहाँ पर, ये वाला जो भी रिलेशनशिप है इसको और एक मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, और एक लाइन यहाँ पर लगा देता हूँ, यानी ये क्या बन जाएगा, 1 to many। अब 1 to many रिलेशनशिप को किस तरीके से कन्वर्ट किया जाएगा ये समझिए। जब भी आपके सामने ऐसा ईआर डायग्राम आएगा, आपको क्या करना रहेगा, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, जो भी एंटिटीज है उसके पहले टेबल बना दो। यानी क्या, टीचर नाम का एक एंटिटी है तो मैं पहले टीचर का टेबल बनाऊंगा। किस तरीके से टीचर का टेबल बनाऊंगा, टीचर में जो भी एट्रीब्यूट्स है वो एज इट इज लेना है, दैट इज टीआईडी कॉमा, यहाँ पर टीचर नेम है तो मैं यहाँ पे टीचर नेम भी यहाँ पर ले रहा हूं। तो ये एक टेबल टीचर का बन गया। अब दूसरा टेबल मैं बनाने जा रहा हूं, दूसरा टेबल जो भी है वो किसका बनेगा, स्टूडेंट का। तो मैं स्टूडेंट का टेबल यहाँ पर बना रहा हूं, स्टूडेंट, और इसमें भी ये फिक्स है, स्टूडेंट के केस में भी एसआईडी और एसनेम मिला जाएगा, एसआईडी आ जाएगा और एसनेम आ जाएगा। तो ये मैंने क्या बना दिया, एक टेबल जो भी है वो बना दिया। ओके, यदि मैं यहाँ पर अटेंडेंस जो भी है ये एक फील्ड है और उसको डेट नाम का क्या किया है हम लोगों ने, एक कॉलम बनाया है। तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा, इस केस में थर्ड आपका टेबल जो भी है वो अटेंडेंस का बनेगा, क्योंकि हर दिन अटेंडेंस में लेता हूं ना। कौन लेता है अटेंडेंस, टीचर लेता है। किसका लेता है अटेंडेंस, स्टूडेंट का, तो एसआईडी। ओके, और इसका यहाँ पे जो भी फील्ड है अटेंडेंस का वो यहाँ पर आएगा, डेट। यानी क्या, यदि आप इसको गौर से देखिए तो मैंने क्या किया, ये पूरे एआर डायग्राम को टेबल में कन्वर्ट किया। वेरी फर्स्ट थिंग, वेरी फर्स्ट टेबल इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड था, कौन सा, टीचर वाला। ओके, इसमें कोई ये नहीं है, एज इट इज टीचर एंड इट्स बोथ द एट्रीब्यूट्स। स्टूडेंट वाला टेबल भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यहाँ पर भी वही किया है। थर्ड मैंने क्या किया, थर्ड यहाँ पर हम लोगों ने अटेंडेंस वाला टेबल जो भी है ये किस तरीके से लिया, अटेंडेंस को क्या है, एट्रीब्यूट है, तो वो एट्रीब्यूट डायरेक्टली यहाँ पर आ गया। देखिए ये डेट एज इट इज आया, और इसका जो भी प्राइमरी की है और इसका जो भी प्राइमरी की है, इन दोनों का जो भी प्राइमरी की है वो यहाँ पर मैंने लिया है। अब देखिए इसका भी प्राइमरी की मैंने यहाँ पर लिया है। तो इस तरीके से हम लोग इसको ये करते हैं। किसके प्राइमरी की है, तो अटेंडेंस को 2 टेबल कनेक्टेड है, एक तो टीचर और दूसरा स्टूडेंट, उनका मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, उनका मैंने यहाँ पर इन दोनों में ये क्या कर दिया, एक फॉरेन की, यानी डॉटेड लाइन से फॉरेन की बनाया और दोनों को मिला के इसको क्या बना दिया, प्राइमरी की। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल है, आपको ये समझना जरूरी है। भले आपको कीज के एस्पेक्ट समझ में नहीं आए होंगे, लेकिन इसको आप इतना टेबल में कन्वर्ट कर दोगे तो बहुत सिंपल है। एज इट इज जो एंटिटी है वो टेबल में कन्वर्ट होती है। देखिए स्टूडेंट वाला ये जो भी है ये टेबल में कन्वर्ट हुआ है। ओके, और ऐसा एंटिटी, ऐसा रिलेशनशिप जो बाइनरी है, 1 to many होगा या many to 1 होगा, और उसके साथ में यदि एट्रीब्यूट है तो आपको थर्ड टेबल क्रिएट करना पड़ता है। यदि एट्रीब्यूट नहीं है उसके साथ में तो थर्ड टेबल शायद ही आपको क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन फोकस करना 1 to 1 है या 1 to many है, ओके, उस केस में आपको नया टेबल लेने की जरूरत नहीं है। मेनी टू मेनी की केस में आपको नया टेबल जो भी है वो लेना पड़ता है। तो यहाँ पर ये समझना है। आई होप यू अंडरस्टैंड, यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड दिस। आपका समय हो चुका है, आपका लंच ब्रेक यहाँ पर होने जा रहा है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉयड द टुडेज सेशन and I hope you will enjoy this entire teaching learning process. Okay, if you have doubt you can anytime ask. मैंने इसलिए रिपीट किया है ये वाला पर्टिकुलर पार्ट कि आप सभी लोगों को समझ में आना चाहिए कि how we can able to convert ER diagram into table. So my dear friends, ऑल द बेस्ट। आई होप आप सभी लोग असाइनमेंट को 5 दिन के अंदर ही क्या कर दोगे, पूरा कर दोगे और उसको सबमिट कर दोगे। थैंक यू ऑल, गुड बाय, हैव अ ग्रेट लंच टाइम, बाय बाय।